ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام شریعت کے آئینے میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ شریعت کے آئینے میں ایک ایسا پروگرام ہے جس میں آپ اپنے دینی مسئلے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، تجسس ہے، کنفیوژن ہے، تو اس کا جو ہے حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ جان سکتے ہیں۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی سید صادق محی الدین صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے اسٹوڈیو میں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ کرمک اللہ۔ اور ناظرین آپ بھی اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے ہوئے نمبرات پر کال کر سکتے ہیں۔ نمبرات جو ہے لگاتار اسکرول ہو رہے ہیں۔ ایک بات کا خیال رکھیے گا کہ جب بھی آپ ہم سے اپنا سوال پوچھیں اس وقت اپنی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجیے گا۔ جب آپ کا سوال مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی ٹی وی کی آواز آپ بڑھا سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آج کل سردیاں چل رہی ہیں تو میں اپنے ناظرین کی طرف سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو لوگ وضو نہیں کر پا رہے ہیں یا پانی کی قلت ہے، جیسے سردیاں چل رہی تو ٹھنڈا پانی بہت ہوتا ہے خاص کر کے فجر میں، تو لوگ وضو کرنے سے گریز کرتے ہیں اور وقت اتنا رہتا نہیں کہ پانی گرم کریں اس کے بعد وضو کریں، تو ایسی صورت میں جو لوگ تیمم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیا اجازت ہے اور تیمم کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیمم وضو کا نائب ہے۔ جو حضرات وضو نہیں کر سکتے، جیسے بیمار ہیں، وضو کریں گے تو ان کو نقصان ہوگا، یا بیماری کے بڑھ جانے کا اگر خوف و خطرہ ہو اور ایسی مجبوری ہو کہ وہ وضو نہیں کر سکتے، اگر پانی کی قلت ہو، پانی موجود نہ ہو، اگر پانی ہمارے اپنے مقام سے 1 میل کی مسافت تک بھی دستیاب نہ ہو، ایسی تمام صورتوں میں تیمم کی اجازت ہے۔ آج کل چونکہ ایسے مکانات تعمیر ہو چکے ہیں جن کی دیواریں مٹی کی نہیں ہیں بلکہ آج کل سیمنٹ کا استعمال ہوتا ہے، تو ظاہر ہے سیمنٹ پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اس پر ایسا رنگ و روغن نہ ہو جیسے کہ آج کل کیا جاتا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ موجودہ دور میں خوبصورتی اور تزئین کی غرض سے سیمنٹ کی دیوار پر بھی کیمیکل سے بنے ہوئے لپم لگا دیے جاتے ہیں، پھر اس پر رنگ کیا جاتا ہے، رنگ آمیزی ہوتی ہے، اس لیے ایسی دیواروں پر بھی تیمم درست نہیں ہے۔ اگر ایسے مکانات ہوں ہمارے تو پھر ہم کو چاہیے کہ ایک مٹی کا برتن ضرور رکھ لیں جس میں آپ مٹی رکھ لیں اور اس مٹی پر آپ تیمم کر لیں۔ اور اگر آپ کی اس دیوار پر گرد و غبار ہو، یہ کہ گھر میں آپ کے ہاں کوئی میز ہے یا کوئی ایسی شے ہے جس پر گرد و غبار موجود ہے، لکڑی وغیرہ کی ہو یا لوہے کی بھی ہو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس پر شرط یہ ہے کہ گرد و غبار ہو، تو گرد و غبار اگر ہو تو اس پر بھی تیمم کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسی تمام چیزیں مفقود ہوں تو پھر چاہیے کہ ایک بڑا سمجھیے کہ برتن یا ٹرے ایسا لے لیں جس میں ہم کوئی پاک مٹی کو رکھ لیں، اس مٹی پر تیمم کریں۔ تیمم کا طریقہ بہت آسان ہے۔ تیمم کے لیے آپ کو نیت کرنا ضروری ہے، وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے، اس لیے شرط نہیں ہے کہ وضو اصل ہے اور تیمم اس کا نائب ہے، اس کا بدل ہے، اس لیے تیمم میں نیت شرط ہے۔ ہم نیت کریں گے کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے میں تیمم کر رہا ہوں، دل میں ارادہ کر لیں، نیت کے لیے یہی کافی ہے۔ اور ان دونوں ہاتھوں کو آپ اس مٹی پر ماریں گے اور اچھی طرح ہاتھوں کو جھاڑ لیں کہ اس پر کوئی ریت کے ذرات وغیرہ، مٹی کے ذرات وغیرہ نہ رہیں، اور اپنے پورے چہرے پر ان دونوں ہاتھوں کو پھیر لیں، یعنی مسح کر لیں۔ جیسے وضو میں آپ چہرے کا احاطہ کرتے ہیں پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک، اسی طرح آپ مسح کا بھی احاطہ کر لیں۔ اور جب آپ مسح کر لیں چہرے کا تو پھر دوسری مرتبہ آپ مٹی پر ہاتھ ماریں گے اور اچھی طرح ہاتھوں کو جھاڑ لیں گے اور پھر دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں تک مسح کریں گے۔ کوہنیوں تک مسح کرنے کا طریقہ آسان یہ ہے
کہ آپ بائیں ہاتھ کی انگلیوں سے اس طرح مسح کا آغاز کریں، کوہنی تک چلے جائیں، اور پھر اوپر سے پھر ہاتھ کی ہتھیلیوں تک بھی آپ دوبارہ مسح کر لیں۔ اسی طرح پھر سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا مسح کریں، کوہنی تک جائیں، پھر اوپر سے آپ مسح کرتے ہوئے آپ اگر ہتھیلیوں تک آ جائیں گے تو الحمدللہ آپ کے دونوں ہاتھوں کا مسح بھی ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ مسح کرنے میں بال برابر جگہ بھی نہ چھوٹنے پائے، اس طرح پورا احاطہ کرنا چاہیے چہرے کا بھی، اور پورا احاطہ کرنا چاہیے مسح میں دونوں ہاتھوں کا بھی کوہنیوں تک، تو الحمدللہ اسے تیمم ہو جاتا ہے۔ لیکن اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ بلا وجہ اگر ہم تیمم کرتے ہیں، بغیر کسی عذر و مجبوری کے تیمم کرتے ہیں، تو وہ تیمم کافی نہیں ہے۔ ہاں، مجبوری ہی کی صورت میں تیمم کیا جا سکتا ہے، اور پھر بغیر مجبوری کے تیمم کیا جائے تو وہ کافی نہیں ہے، اس سے ہم نماز ادا نہیں کر سکتے۔ نماز کا وقت چلے جانا بھی کوئی معقول عذر نہیں ہے۔ جی اگر پانی آپ کے پاس موجود ہے اور پانی گرم کرنے کے اسباب بھی بآسانی آپ کو مہیا ہیں، تب تو آپ کو پانی گرم کر کے ہی وضو کر لینا چاہیے۔ اور اگر کسی کو ایسے اسباب مہیا نہیں ہیں، یا یہ کہ مہیا تو ہیں لیکن گرم پانی بھی نقصان کرتا ہو، تب تو ان کے لیے رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب جزاک اللہ، خدمات کے لیے۔ جزاک اللہ۔ اور آئیے ناظرین پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں۔ جی سوال پوچھیے۔ ہے نا؟ جی آپ کی آواز آ رہی، سوال پوچھیے۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے، سوال کیجئے اپنا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال کیجئے اپنا۔ ہاں یہ سر سالی ہے تو بھونائی کے ساتھ ہے تو جیسے عمرے کو جا سکتی ہے؟ عمرے کو کون خواتین جا سکتے؟ سالی جیسے ہماری بہن ہے تو ہمارے شوہر کے ساتھ جیسے بہن بھونائی جا رہے جیسے تو وہ سالی جا سکتی ہے، ان کا آدمی نہیں ہے جسے انہوں نے چھوڑ دیے، جیسے آدمی کو ڈیورس ہو گیا ان کا، تو سالی بھونائی کے ساتھ عمرہ کر سکتی کیا؟ محرم بن سکتے کیا ہمارے ٹھیک ٹھیک۔ ہاں اور دوسرا جی بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ جی میں بہار دربھنگا سے بات کر رہا ہوں۔ سوال پوچھیے اپنا۔ یہ میرا سوال یہ تھا کہ سوال کو آپ تھوڑا غور سے اور تھوڑا اچھے سے بتائیں گے آپ۔ جی حضرت سے میری گزارش ہے جی کہ میرے بھائی نے لو میرج شادی کیا ہے، تو وہ شادی کرنا لو میرج تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس نے تو اپنے سنت کو اپنے زندہ کیا ہے۔ جی ہاں سنت کو اپنے زندہ کیا، تو میرے گھر میں ایک اور شادی ہے، جی تو میرے چچا جان کی انتقال 2017 میں ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی انتقال ہونے سے پہلے کی وہ ان سے بات ہوتی تھی شادی کرنے کے بعد، اور وہ شادی مطلب ان کی انتقال کے بعد 2017 میں وہ آئے تھے وہ گھر کے اندر۔ اگر میرے چاچی جان کا کہنا ہے کہ ان کا وصیت ہے کہ وہ میرے گھر میں نہیں آئے گا، جی ہاں ٹھیک۔ تو اگر ایسی وصیت تھی تو جب ان کی انتقال کے بعد انہوں نے جب اپنے اس گھر میں آیا تھا تو اس ٹائم میں ان کو منع کر دیا جاتا ہے، جی کیا اس پہ کیا مسئلہ کا مطلب اس کا حل ہو سکتا ہے؟ وہ بولنے کہ ہم وہ اگر آئے گا تو میں نکل جاؤں گی، میں اس شادی میں نہیں رہوں گا، ٹھیک ان کی بیوی جو ابھی حیات۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ مفتی صاحب سوال آپ سمجھ گئے؟ نہیں میں تو نہیں سمجھ سکا یہ سوال۔ اچھا یہ سوال یہ تھا کہ ان کے بھائی نے مطلب لو میرج کی، جی لو میرج کی ہے، اور ان کے چچا جب حیات تھے 2017 تک حیات تھے، تو انہوں نے اپنی بیوی سے اپنی اہلیہ سے بولا تھا اس لڑکے کے لیے، ان کے بھائی کے لیے، کہ اگر وہ گھر پہ آئے گا تو میں گھر سے نکل جاؤں گا، اور مطلب گھر پہ آنے کی اجازت نہیں تھی ان کو۔ جی تو اب ایسی صورت ان کا انتقال ہو چکا ہے، اور انہوں نے براہ راست مطلب لڑکے سے نہیں بولا تھا، اب ان کی اہلیہ بول رہی ہیں یہ بات، تو یہ بات کہاں تک درست ہے؟ کیا شریعت کیا کہتی ہے؟ نکاح سنت ہے، جب آپ نے نکاح کر لیا ہے تو شرعاً اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ آپ کے پیار و محبت کر کے نکاح کرنے سے ایسا کوئی شرعی
अम्र माने नहीं है कि आप उनके घर में ना आएँ। इस तरह की बातें जहालत की हैं। अगर आपके चचा मरहूम ने ज़िंदगी में कहा था कि और अपनी चची को वसीयत की थी कि वो आप घर में ना आएँ, आपको घर में आने से उन्होंने मना कर रखा था, गो कि आपने न सुना हो, आपकी चची ही ने ये बात कही हो, तभी ये बात गलत है और इसकी इस्लाह होनी चाहिए। और चचा की ज़िंदगी में भी आपको बहरहाल जाना चाहिए था, लेकिन जब चचा का इंतकाल हो जाए तो ज़रूर आपको उनके जनाजे में शरीक होना चाहिए। ऐसे मौके पर भी अगर चची मना करती हैं तो उनको मना करने का गुनाह होगा और उनके लिए जायज़ नहीं है कि आपको जनाजे में शिरकत से मना करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और एक मोहतरमा ने सवाल किया था कि क्या बहनों के साथ कोई साली जो है हज या उम्रा पर जा सकती है अगर उनके शौहर का या तो इंतकाल हो गया हो या फिर मतलब तलाक वगैरह दे दी हो, कुछ ऐसा मसला हो? किसी के शौहर गुज़र गए हों या उन्होंने तलाक दे दी हो तो उस खातून को उम्रा करना कोई ज़रूरी नहीं है। ये बात हमें याद रहनी चाहिए कि हज फ़र्ज़ है, वो भी ऐसे असहाब पर जो साहिब इस्तिताअत हैं। उम्रा साहिब इस्तिताअत अफराद पर भी फ़र्ज़ नहीं है, न वाजिब है, बल्कि उम्रा करना नफल है, मुस्तहब है, बायस अजर व सवाब अमल है। फजीलत वाले आमाल के इख्तियार करने में ज़ाहिर अजर व सवाब ज़रूर है, लेकिन शरई अहकाम की पासदारी ज़रूरी है। चूँकि ख़वातीन को बग़ैर महरम के सफ़र करने की शरन इजाज़त नहीं है, खा वो हज का सफ़र हो, खा वो उम्रे का सफ़र हो, खा वो कोई आम सफ़र हो। इसलिए चूँकि आपके जो बहन भाई हैं वो महरम नहीं हैं, चूँकि उनसे अबदी हुर्मत नहीं कायम हो जाती। अगर उनकी निकाह से हट जाती हैं तो बहन भाई को अपनी साली से निकाह करने की इजाज़त है, इसलिए अबदी हुर्मत नहीं है, इसलिए वो उनके महरम नहीं बन सकते। शरीयत ने चूँकि उम्रा फ़र्ज़ नहीं किया है, वाजिब नहीं किया है, इसलिए उनका अपने बहन भाई के साथ सफ़र करना, गो कि उनकी हकीकी बहन साथ हो, तभी शरन दुरुस्त नहीं है। हाँ, अलबत्ता हज का सफ़र हो और हज फ़र्ज़ हो तब भी फ़ुक़हा ने मना किया है, लेकिन बाज़ फ़ुक़हा इसकी इजाज़त देते हैं कि हज फ़र्ज़ हो और महरम का इंतज़ाम न हो तो वह फ़रीज़ हज अदा कर सकती है, बशर्ते कि ख़वातीन का ऐसा काफ़िला हो जो अमन और इत्मीनान का हो, लेकिन उम्रे के लिए शरन इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आपको और मुफ्ती साहब को मेरी तरफ से अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील साहब जी, सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि ये नमाज में अगर नमाज में कोई जमात के साथ पढ़ी जाती है और रकअत छूट जाए तो सना ये जब शामिल हुआ जाएगा तब पढ़ा जाएगा या फिर बाद में जो नमाज पूरी की जाएगी तब पढ़ी जाएगी सना? और दूसरा सवाल ये है नमाज के मुतल्लिक ही है, 4 रकअत के नमाज में अगर मैं तन्हा नमाज पढ़ रहा हूँ और बैठा हूँ तो याद के बाद गलती से अगर दुरूद शरीफ पढ़ लिया जाए तो ये आखिर बीच में ही अगर याद आ जाए तो फिर खड़े होकर बाकी नमाज मुकम्मल कर लिया जाए तो क्या सज़ा सहूद किया जाएगा या फिर नमाज हो जाएगी बिना सज़ा सहूद के? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, उसके बाद बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो, हम कश्मीर से बात कर रहे हैं भाई। जी सवाल पूछिए अपना। हेलो, माज़रत चाहूँगा आपका सवाल नहीं ले सकता हूँ, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही सही। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट। जी सवाल पूछिए अपना। नहीं, मेरा नाम सैयद नईमुद्दीन है। जी सवाल पूछिए। और बच्ची को जो भी रिश्ता आ रहा सैयद है बोल के रिश्ता नहीं हो रहा। अच्छा जी, आप सैयद हैं और आपकी बेटी का रिश्ता इसलिए तय नहीं हो पा रहा है कि वो सैयद हैं आप लोग? हाँ जी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हेलो जी कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
हेलो सर, कामारेड्डी से। हाँ, सवाल पूछिए अपना। टीवी की आवाज बंद कर दीजिए भाई। बताइए सवाल क्या आपका। सर ये पूछना ये था कि तहज्जुद का वक्त ईशा के बाद शुरू होता है ना सर, कब तक होता है सर, ये पूछना है सर। ठीक है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, जी जी। मोहम्मद शकील साहब ने मुजफ्फरपुर से सवाल किया था कि जैसे मस्जिद में गए तो उस वक्त जमात ठहर चुकी थी और अगर जैसे 1-2 रकत भी निकल जाती है तो ऐसी सूरत में जब बाद की ये रकात पूरी करेंगे तो उसमें सना पढ़ना ज़रूरी है और अलहम्द शरीफ उसके बाद जो कोई भी सूरह पढ़ना ज़रूरी है, किस तरह से पढ़ेंगे? आप अगर मस्जिद में पहुंच गए हो, मिसाल के तौर पर ज़ुहर की नमाज है या असर और या इशा की नमाज है या मगरिब की नमाज है, आपकी अगर पहुंचने में ताख़ीर हो गई हो और 2 रकातें इमाम साहब पहले अदा कर चुके हों, तो आप जब मस्जिद में पहुंचेंगे दिल में इरादा होगा नमाज़ पढ़ने का। जैसे ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर की नमाज़ का दिल में इरादा हो और अल्लाहु अकबर कहकर आप तकबीर तहरीमा कहेंगे, हाथ बांध लेंगे। कुछ मक़दार आपको क़ियाम करना है, इतना मौका मिल जाए कि आप उसमें सना पढ़ सकें तो इस मौके पर आप सना पढ़ सकते हैं और फिर इमाम साहब के साथ शरीक जमात हो सकते हैं। अगर आपने तकबीर तहरीमा के बाद सना पढ़ ली है तो फिर इमाम साहब के सलाम फेरने का जब आप क़ियाम करेंगे तो उस मौके पर आपको सना पढ़ना नहीं है, बल्कि ताऊज़ व तस्मिया पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। और आपकी चूँकि बाद की 2 रकातें मिली हैं तो फिर ज़म्मे सूरा भी करेंगे और फिर उसके बाद रुकू व सुजूद अदा करेंगे। और ज़ोहर और इशा की नमाज़ हो तो और मज़ीद 1 रकात उसमें इजाफ़ा करेंगे, मगरिब हो तो 1 ही रकात पे इक्तफ़ा करेंगे। मसलन 2 रकातें आपकी छूट गई हों तो फिर आपको मगरिब में भी मज़ीद 2 रकातें अदा करनी पड़ेगी। तो उसका तरीक़ा यही है कि आप अगर सना पहले न पढ़े हों तो इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद आप क़ियाम करेंगे। इस क़ियाम में आप पहले सना पढ़ लें, फिर ताऊज़ तस्मिया पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और फिर सूरह फातिहा पढ़ें और ज़म्मे सूरा की तिलावत करें। ज़म्मे सूरा मतलब ज़म्मे सूरा के माने यह है कि सूरह फातिहा में और एक सूरत को मिलाएं। इस तरह आप और 1 रकात आपकी छूट गई उसको भी अदा कर लें और सलाम फेर दें। और मगरिब की नमाज हो तो ज़ाहिर है आपको फिर मज़ीद इमाम साहब के साथ 2 रकातें आपकी मिल चुकी हैं, आपने क़ियाम कर लिया है, तो एक रकात आपकी बाकी है तो क़ियाम करेंगे और फिर सूरह फातिहा के विर्द करेंगे और सना पढ़ेंगे, ताऊज़ तस्मिया पढ़ेंगे और सूरह फातिहा पढ़ेंगे। ज़म्मे सूरा के बाद रुकू व सजदा करेंगे और इस रकात में आप कायदा करके सलाम फेर देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और सैयद नईमुद्दीन साहब ने रंगा रेड्डी से सवाल किया था कि ये सैयद हैं तो इनके यहाँ बेटी के रिश्ते आते हैं लेकिन वो तय इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कास्ट की वजह से, सैयद होने की वजह से। हमारे समाज में जिहालत की वजह से ये बात मशहूर हो चुकी है कि सादात घराने की लड़की से निकाह न किया जाए। अगर सादात घराने की लड़की से निकाह किया जाता है, किसी शेख घराने वाले या किसी दूसरे पठान वगैरह जैसे होते हैं वो घराने वाले किसी सैयद घराने की लड़की से निकाह करते हैं तो वो उनके लिए नहुसत का बायस बनता है। ऐसा कोई अक़ीदा और ज़न्न गुमान हमने बना रखा है, ज़ाहिर है ये जिहालत की बात है। यहाँ दीनदारी देखी जानी चाहिए और सादात घराने की लड़की से आपका रिश्ता तय हो रहा हो तो अल्हम्दुलिल्लाह नूरुन अला नूर, आपको खुश होना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि उस रिश्ते का इनकार किया जाए। अगरचे कि इस्लाम में कुफू की बड़ी अहमियत है, ख़ानदान की अहमियत है ज़ाहिर है, लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान जैसे ममालिक में इसमें इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है। कुछ वजूहात भी हैं, ताहम अगर कोई दीनदार घराना हो, तक़वा परहेज़गारी का मुरक्का हो तो ज़ाहिर है वैसे घराने से रिश्ता किया जा सकता है। कोई शेख और पठान और कोई भी ख़ानदान और कबीले से ताल्लुक़ रखता हो, उस ख़ानदान का लड़का किसी सादात घराने की लड़की से ज़रूर निकाह कर सकता है। इस वहम को हमारे जहनों से निकालने की ज़रूरत है। इस तरह की जो बदशगुनी है शरन जायज़ नहीं है। आप बहरहाल दुआ करते रहिए अल्लाह ताला से, इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छा रिश्ता आपको मैसर आएगा। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर का कसरत से आप भी विर्द कीजिए और आपकी
साहबजादी को भी बताइए कि वो भी कसरत से इसका विरोध करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कमर रेड्डी से एक सवाल आया था, इन्होंने पूछा था कि तहज्जुद का वक्त किस वक्त से शुरू होता है, इशा के बाद क्या शुरू हो जाता है? आपने इशा की नमाज़ पढ़ ली है, फ़र्ज़ अदा कर लिया है, उसकी सुन्नत अदा कर ली है, उसके बाद आप जो भी नमाज़ पढ़ेंगे तहज्जुद के इरादे से, तहज्जुद की नीयत से, वो आपकी तहज्जुद ही की नमाज़ शुमार होगी। चूँकि इशा की नमाज़ पढ़ लेने के बाद तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है, लेकिन अफजल वक़्त रात के तिहाई हिस्से का है। यानी मतलब ये कि रात के 3 हिस्से कीजिए, आखिरी जो तिहाई हिस्सा है वो हिस्सा तहज्जुद के पढ़ने के लिए बहुत अफजल है। लेकिन आप अगर रात में उठने का यकीन नहीं है तो ऐसी सूरत में आप इशा की नमाज के बाद भी तहज्जुद की नीयत से 4-6 रकात 8 रकात अदा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह वो नमाज तहज्जुद ही की शुमार हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन कुछ और कॉलर्स को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं जेके से बात कर रहा हूँ, कश्मीर। जी सवाल पूछिए अपना। मान लीजिए अगर किसी ने फैमिली प्लानिंग की हो तो वो नमाज पढ़ा सकता है? क्या सवाल है आपका? अगर किसी ने फैमिली प्लानिंग की हो तो अजान दे सकता है या इमामत कर सकता है? ठीक, आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं बेंगलुरु जयनगर से बात कर रही हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। जब भी कुरान की तिलावत करती सिजदा पहले कर सकती या पढ़ने के बाद करना? ठीक, जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम साहब। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? रंगा रेड्डी से। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि हमारे भाई के लिए रिश्ते देख रहे हैं तो उनको कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आ रहा और क्या है तो उसके लिए कुछ भी वजीफा बता देंगे तो? भाई से वजह जानने की कोशिश करी क्यों उनको पसंद नहीं आ रहे रिश्ते? तो मतलब लड़की भी सही नहीं है बोले, मतलब कुछ भी आ जा रहा हो। ठीक, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, शोपोर से बोल रहा हूँ। जी सवाल पूछिए अपना। हाँ सवाल मेरा है कि जब कोई आदमी मर जाता है जी ये उसके वक्त 3 सवाल किया जाता है, मन रब्बु का, मन दीनु का। जब रोज माशर में 5 सवाल पूछा जाएंगे उनके हमें मौलाना साहब से तशरीह चाहिए कि वो 5 सवाल क्या है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम कहाँ से बात कर रहे हैं? मारूफ अहमद बोल रहा हूँ सर, जम्मू से। जी सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि ये जो हमारा निकाह है जिस तरह शिया है सुन्नी है सर, तो ये जानना चाहते हैं हम उलमा कराम से कि ये हम निकाह जो है वो शिया बरादरी से या शिया बरादरी की लड़की हमारे सुन्नी बरादरी में आ जाए तो ये निकाह जायज़ है या इससे थोड़ा सा हमें तफसील बता दीजिए। ठीक, नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत के आईने में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब एक बार फिर आपका खैर मकदम ब्रेक के बाद। और मुफ्ती साहब जो सवालात आए थे ब्रेक पे जाने से पहले वो मैं लेता हूँ। बेंगलोर से मोहतरमा ने सवाल किया था कि तिलावत कुरान पाक में अगर सजदा आ जाए तो उसको पहले करना चाहिए या फिर बाद में करना चाहिए या तिलावत कुरान पाक के दौरान करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि नमाज का वक्त हो जाने के बाद ही नमाज अदा की जाती है। मिसाल के तौर पर ज़ोहर की नमाज का वक्त अभी न हुआ हो और हमने ज़ोहर पढ़ ली हो तो ज़ाहिर है हमारी नमाज ज़ोहर अदा नहीं होगी। इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। तो नमाज के अदा करने के लिए वक्त अल्लाह ने मुकर्रर फरमा दिया है, मुकर्ररा वक्त के बाद ही हम नमाज अदा करेंगे, नमाज अदा होगी। इसी तरह से हमने कुरान पाक की तिलावत शुरू की है, आयत सजदा आ गई हो
تو آیت سجدہ کی تلاوت سے پہلے سجدہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ہم جب آیت سجدہ تلاوت کر لیں گے تبھی ہم پر سجدہ واجب ہوگا۔ آیت سجدہ آ جانے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا، بلکہ آیت سجدہ کی تلاوت کرنے سے سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ جب آپ نے آیت سجدہ تلاوت کر لی ہے تب آپ سجدہ تلاوت کریں۔ درمیانے تلاوت بھی آپ جیسے ہی آیت سجدہ تلاوت کر لیں تلاوت موقوف کر کے سجدہ کر سکتی ہیں، اور اگر آپ کو کچھ توقف چاہیے بعد میں کرنا چاہتی ہوں تو بھی اس کی اجازت ہے کہ آپ اپنی تلاوت کی تکمیل کرنے کے بعد بھی وہ سجدہ جو آپ پر واجب ہے وہ سجدہ ادا کر سکتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ رنگا ریڈی سے بھائی نے سوال کیا تھا کہ ان کے بھائی کے لیے رشتے آ رہے ہیں لیکن ان کے بھائی کو کوئی رشتہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیا کریں، کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ اب آپ کے بھائی صاحب کو ہم ایک مشورہ دیں گے کہ نیک اعمال کر کے دنیا سے رخصت ہو جائیں تو انشاءاللہ ان کا نکاح جنت کی حور سے ہوگا۔ دنیا میں آپ کسی لڑکی سے بھی نکاح کریں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی کمی ضرور رہے گی جو آپ کے لیے ناپسند خاطر ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی جنت کی حور آپ کو دنیا میں مل جائے۔ ہاں آپ کو نکاح کرنا ہے کسی لڑکی سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دینداری قابل ترجیح ہونی چاہیے۔ ایسا نکاح جس میں دینداری کو دیکھا جائے، سیرت کی پاکیزگی کو دیکھا جائے، وہ نکاح بابرکت ہوتا ہے۔ ایک بہت بڑے شاعر صفی اورنگ آبادی گزرے ہیں، انہوں نے کہا ہے اچھے گن دیکھ اچھی شکل نہ دیکھ، اچھے گن دیکھ اچھی شکل نہ دیکھ، سنکھیا بھی سفید ہوتا ہے۔ ظاہر ہے سنکھیا زہر ہے، وہ ہوتا سفید ہے، آپ اسے شکر سمجھ کر استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے آپ کسی لڑکی سے نکاح کریں گے اس کے رنگ و روپ کی بنیاد پر، اور اگر وہ دینداری میں ناکام ہو تو ظاہر ہے وہ لڑکی آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دینداری قابل ترجیح ہے۔ آپ کے بھائی کو چاہیے کہ جو رشتے آ رہے ہیں اس میں کسی ایک لڑکی کو پسند کر لیں اور فوری نکاح کر لیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین کچھ اور کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ بنارس سے بات کر رہے ہیں۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں گے بھائی؟ ٹی وی کی آواز۔ جی سوال پوچھیے۔ ہاں سر بتائیے۔ سوال پوچھیے اپنا۔ سوال یہ ہے کہ جو ہم خواتین وضو بناتے ہیں بیسین میں کھڑے ہو کے، کیا وہ صحیح ہے؟ کھڑے ہو کے وضو کرتی ہیں؟ ٹھیک ہے چلیے۔ ہاں مطلب کھڑے ہو کے جو وضو بناتے ہیں تو وہ صحیح ہے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بنارس سے۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ کشمیر سے بات کر رہا ہوں، کشمیر سے۔ سوال پوچھیے اپنا۔ سوال کہ اگر کسی زیارت میں منت مانی ہو تو وہ بھول جائے، کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو سر۔ جی السلام علیکم، کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں سر۔ جی سوال پوچھے۔ جی سر یہ فیملی پلاننگ کے بارے میں پوچھنا تھا ہمیں، اگر کسی نے فیملی پلاننگ جی آپ کا سوال۔ جی جی اس کے علاوہ کوئی سوال ہے؟ نہیں سر بس ٹھیک ہے چلیے، بہت بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی سوال پوچھیے اپنا۔ ہم بول رہے ہیں سر دراز سے، ڈسٹرکٹ کرگل سے سر۔ جی جی سوال پوچھیے۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی بھائی ہلو سوال پوچھیے اب اپنا۔ سر ہمارا یہ سوال ہے سر، ہمارے علاقے میں سر یہ جو آگے مطلب باہر سے میٹ آتا ہے نا سر، یہ کاٹا ہوا میٹ، ذبح میٹ، جی اب یہ ہمیں پتہ نہیں ہے سر ذبح ہے کیا ہے، یہ ہم کھا سکتے نہیں کھا سکتے سر، پیکنگ اس کے بارے میں ہم پوچھ رہے ہیں۔ ٹھیک، آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سہارنپور سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے۔ جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہاں
कुछ मसाजिद में जो है वो लोग चंदा इकट्ठा करते हैं जबरदस्ती इमाम साहब के लिए। इमाम साहब के लिए जी जी, और यहाँ तक कहते हैं कि नमाज पढ़ाने का जो वो है उजरत वो घर घर से इकट्ठी की जाएगी महीनेवार जी, 1200 रुपए सालाना आपको देना पड़ेगा। जो हजरात नहीं देते उनसे लड़ते झगड़ते हैं वहाँ के लोग, कुछ लोग, हालांकि वो कुछ लोग खुद भी बासरे नहीं है, खुद भी नमाज नहीं पढ़ते जी, लेकिन वो इमाम साहब के लिए है ठीक, इकट्ठा करने के लिए जबरदस्ती करते हैं। ठीक, जो लोग देने से मना करते हैं तो इसके लिए बड़े बड़ाई कराऊं, शरीयत के आने में बताइए कि क्या उजरत पे इमाम को रखना जायज़ है या नमाज पढ़ाने की जरूरत देना जायज़ है? बराए कराम रहनुमाई फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आइए नाजरीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बेंगलुरु से बात कर रहा हूँ। सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है, दुनिया में पहले नबी है कि कलमा आया? जी, और कोई सवाल? नहीं, एक ही सवाल। अगर नबी पे बाद है तो कलमा में रसूल का नाम कैसे आया? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अहमदाबाद से बात कर रहा हूँ। जी सवाल पूछिए। हेलो, मेरा सवाल इतना ही है हजरत। जी हेलो या जी, आपकी आवाज़ आ रही, सवाल कीजिए अपना। मेरा सवाल इतना ही हजरत कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मुफ्ती साहब जो आपके बाजू में बैठे कह दीजिए मेरे लिए आखिरी में दुआ कर देंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी जी, बनारस से मोहतरमा ने सवाल किया था कि ख्वातीन जो खड़े होकर वज़ू करती हैं या जो मर्द हजरात जो है खड़े होकर वज़ू करते हैं, तो क्या खड़े होकर वज़ू करना सही है? नमाज के लिए वज़ू शर्त है। अगर आपने खड़े होकर वज़ू कर लिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे वज़ू हो जाता है। अब रहा वज़ू के कुछ आदाब बयान किए गए हैं, उन आदाब का लिहाज रखते हुए वज़ू किया जाए तो बायस फजीलत है। मिसाल के तौर पर वज़ू के आदाब में ये बात भी शामिल है कि आप क़िबला रू बैठें और बैठकर वज़ू करें। ये अदब है, कोई फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। और अगर किसी को बैठने के लिए उज़्र हो, वो खड़े होकर ही वज़ू करते हैं, तब तो उनके लिए कोई हर्ज की बात नहीं है, इंशाअल्लाह उनको फजीलत भी हासिल हो जाएगी। और जो बैठने पर कुदरत रखते हैं, सहूलत है कि वो बैठ कर वज़ू कर सकते हैं, तब भी वो क़ियाम करके वज़ू करेंगे तो वज़ू तो उनका हो जाएगा, लेकिन जो फजीलत मिलनी चाहिए वो फजीलत उनको हासिल नहीं होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सहारनपुर से कोई भाई ने सवाल किया था कि उनके यहाँ की मस्जिद में लोग जो है चंदा इकट्ठा करते हैं, वो बोलते हैं कि ये चंदा इकट्ठा होगा ये इमाम साहब को दिया जाएगा, और जो लोग नहीं देते तो उनसे लड़ाई झगड़ा बहस और तकरार करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या हुक्म है? पहली बात तो यह है कि इमाम साहब के लिए हो या किसी और के लिए मस्जिद में सवाल करना, चंदे का ऐलान करना, यह ख़ुद गैर दुरुस्त अमल है, इससे एहतियात बरती जानी चाहिए। और मुफ्ती साहब घर पे भी जाके चंदा इकट्ठा करते मोहल्ले की मस्जिद। अब रहा, आप अगर महल्ले में जाकर घरों पर दस्तक देकर चंदा वसूल करते हों तो शरन इसी गुंजाइश है, लेकिन ज़ोर व ज़बरदस्ती शरन जायज़ नहीं है। आप जब किसी के यहाँ पहुँचें मस्जिद के ताउन के सिलसिले में और दरख्वास्त करें और आपकी दरख्वास्त को वो कबूल करके जो ताउन कर दें, आप बखुशी उसको कबूल कर लें, लेकिन किसी पर जबर करना, ज़्यादती करना, ये शरन जायज़ नहीं है। ऐसा अमल करने वाले सख्त गुनाहगार हैं। अब रहा इमाम साहब को तनख्वाह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये भी एक मसला है। अभी हमारे भाई ने उसका भी इशारा किया है। हम बताते हैं कि सदर इस्लाम में, उसके बाद खुलफाए राशिदीन के ज़माने में और हमारे क़दीम ज़माने में अदवार में बैतुल माल से मजहबी खिदमत अंजाम देने वालों के लिए रोज़ीना मुकर्रर हुआ करता था। चूँकि इस्लामी ममलकत भी नहीं है, ना ऐसे बैतुल माल का कोई नज़म है, इसलिए अगर इमाम साहब पाबंदी से नमाज़ पढ़ाएँ दूसरे और कामकाज छोड़कर, तब तो उनके लिए कुछ न कुछ सहूलत हमको बहम पहुँचानी चाहिए, ताकि वो अपने जो ज़रूरियात हैं उसकी तकमील करके
सुकून के साथ नमाज पढ़ा सकें। इसलिए फ़ुक़हा किराम ने जो बात के फ़ुक़हा हैं इस बात की इजाज़त दी है कि नमाज पढ़ाने वाले को कुछ न कुछ मुआवज़ा दिया जा सकता है, इसलिए हमको इसका ज़रूर एहतमाम करना चाहिए। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हमारी मस्जिद के इमाम बहुत ज़्यादा लायक व फ़ायक हों, उलूम इस्लामी में महारत रखते हों और महल्ले के सारे मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हों, और उनकी तनख्वाह एक गज़ेटेड ऑफिसर की होनी चाहिए, और उनको ऐसी सहूलतें बहम पहुँचाई जानी चाहिए जो आम तौर पर वज़रा को और मिनिस्टरों को बहम पहुँचाई जाती हैं। ऐसा हम करेंगे तो ज़ाहिर है हमारे माशरे में बड़ा सुधार आएगा, और वो उलमा जो मेहनत करके ज़िंदगी तमाम इल्म हासिल करते हैं उनके लिए राहत रसानी का सामान भी होगा, और वो दिल जमई के साथ इल्म दीन हासिल करेंगे और मिल्क और मिल्लत की सच्चे दिल से खिदमत कर सकेंगे। तो इमाम साहब को ज़रूर मुआवज़ा दिया जा सकता है, लेकिन चंदे की वसूली में ज़ोर ज़बरदस्ती शरन जायज़ नहीं है, न घर पर न मस्जिद में। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कारगिल से भाई ने सवाल किया था कि जैसे गोश्त जो आता है उसमें पता नहीं चलता कि ये हलाल है या हराम है, तो किस तरह से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या सही है, दुरुस्त है? कहीं से अगर कंपनियों की तरफ से गोश्त पैक होकर हमारे शहरों तक पहुंचता है तो हम उसकी तहक़ीक़ ज़रूर कर लें कि यह ज़बीहा हलाल है या नहीं है, ये हमारा फ़रीज़ा है। अगर इस बारे में कोई शक व शुबा हो तो हम उसके इस्तेमाल से सख्त इज्तनाब और एहतराज़ करें। अपने शहर में जहाँ ज़बीहा होता है हलाल तरीक़े से वही गोश्त इस्तेमाल करें, और इसमें भी कोई दुश्वारी हो तो आप कोशिश करें कि आप 2-4 असहाब मिलकर कहीं जानवर ख़रीद लें और जानवर को किसी मज़बा खाने में ले जाएं, क़ानून के मुताबिक ज़िबा करें और वो गोश्त घर लाएं और उस गोश्त का इस्तेमाल करें। मुख्तसर यह है कि हलाल ज़बीहा इसका समझिए कि तहक़ीक़ करना, इसकी तहक़ीक़ करना ये हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है। हलाल ज़बीहा का इस्तेमाल भी हम पर फ़र्ज़ है। अगर किसी वजह से हमने हराम गोश्त इस्तेमाल कर लिया है तो शरन नाजायज़ व हराम है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम शरीयत के आईने में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती सैयद सादिक मोहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मक़दम है। जज़ाकल्लाह अज़्ज़कल्लाह करमकल्लाह। और नाज़रीन, ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को इस प्रोग्राम से जोड़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। सर ये शरीयत के आईने में है। जी जी, सर मेरा एक सवाल है सर। टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए, फिर अपना सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल यह है कि जब हम बाथरूम में वुजू बनाते हैं नमाज के लिए, लेकिन बाथरूम में कमोड होता है सर, क्या वहाँ पे वुजू करना दुरुस्त है? जी ठीक। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हज़रत, मैं मुफ्ती साहब से सवाल है मेरा छोटा सा जी, कि सैयद घराने में कोई गरीब है जी, निहायत ही गरीब है, तो उनको जगह दे सकते हैं क्या? और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं मुबारकबाद दूंगा आपके जो फोन अटेंड करने वाले हैं जो भी हैं, उनको मुबारकबाद दूंगा कि बहुत अच्छी तरीके से वो फोन अटेंड करते हैं। बहुत से लाइव प्रोग्राम में काफी तकलीफ होती है, साल फोन नहीं लगते, लेकिन आपका प्रोग्राम इतना निहायत अच्छा है जी कि बहुत जल्दी फोन अटेंड कर लेते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से बात कर रहे हैं मोहतरम? मैं मध्य प्रदेश छिंदवाड़े से बोल रहा हूँ, अब्दुल सैयद करीम। जी, और कोई सवाल आपका? बस शुक्रिया। ठीक, आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारा सवाल मुफ्ती साहब। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? तमिलनाडु से, चेन्नई से। जी सवाल पूछे। हमारा सवाल है, हमारा एक मकान है जी, उसमें नीचे में औरतों का मदरसा छोड़ के ऊपर घर रह सकते क्या? मकान में नीचे मदरसा छोड़ के ऊपर जीना रह जाएगा? चलो ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए चेन्नई से। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी यूपी से, मऊ यूपी से बात कर रहे हैं। सवाल पूछिए अपना। जी मेरा सवाल ये है कि क्या रुकू में, मतलब रुकू से नमाज में शामिल होने पे क्या रकात वो शुमार होगी?
मतलब रुकू में अगर शामिल नमाज के लिए गए, नमाज छूट गई है तो रुकू से हम शामिल होते हैं नमाज में, तो क्या वो नमाज शुमार हो गई कि नहीं? वो रकात वाली जी वो रकात। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए मऊ से। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर वाले नमाज के पाबंद नहीं है, नमाज नहीं पढ़ते, हमारी बीवी भी नहीं पढ़ती, अब उसमें क्या करा जाए? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सैदपुर कस्बा, सैदपुर जिला बदायूं, यूपी। जी, आपकी बीवी अभी प्रोग्राम देख रही हैं? हाँ देख भी रही हैं। ठीक, मुफ्ती साहब से जवाब ले लेते हैं आपके सवाल का। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मोहतरमा कहाँ से बात कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, जयपुर से। जी सवाल पूछिए अपना। मेरी बच्ची है, हमारी बच्ची की है ना, गोदों में उनने फैसला वैसे मुँह जबानी फैसला दे के तलाक दे के भिजा दिया, वो लिखा पढ़ी नहीं हुई थी। वो जब भी 3 महीने रुक गई थी इद्दत में, और अब वो लिखा पढ़ी का हमने लिखा पढ़ी करवा के और फिर फैसला ले लिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब, एक सवाल कश्मीर से भाई ने किया था कि जो फैमिली प्लानिंग करते हैं तो क्या वो नमाज़ पढ़ सकते हैं, उनके पीछे नमाज़ पढ़ी जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज़ पढ़ाना एक अलग अमल है और ख़ानदानी मनसूबाबंदी की गर्ज से ऑपरेशन करवा लेना एक अलग अमल है। इस्लाम इसकी हौसला अफजाई नहीं करता कि कोई इंसान अपने ख़ानदान की मनसूबाबंदी करे और उसको मुख्तसर रखने की कोशिश करे। ये गुनाह का काम है, अल्लाह को नाराज़ करने वाला अमल है, उनको तौबा व इस्तिग़फ़ार कर लेना चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने ऐसा फैमिली प्लानिंग करवा ली है और वो इमाम हैं, नमाज़ पढ़ाते हैं, तब तो उनका नमाज अदा करना भी दुरुस्त है, उनकी इख्तिदा में नमाज भी हो जाती है और उनको इमाम भी बनाया जा सकता है, उनकी इख्तिदा में नमाज भी अदा की जा सकती है। जी मुफ्ती साहब, बेंगलोर से भाई ने सवाल किया था कि दुनिया में पहले नबी आए या कलमा आया? मैं आपसे सवाल करूं कि अल्लाह के नबी सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया है, तो क्या कुरान पहले आया कि नबी पहले आए? ज़ाहिर है अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की बेअसत पहले होती है और फिर अंबियाए किराम पर वही नाजिल होती है और वो बतौर पैगाम के कलिमा उनको दिया जाता है और वो उस कलिमे की इशाअत करते हैं, दावत व तबलीग करते हैं, लोगों तक कलिमे का पैगाम पहुँचाते हैं। सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशता मुबारका होने के बाद ही ज़ाहिर है हमको ईमान लाने की दावत दी गई है। ईमान कैसे लाया जाएगा? ईमान लाने के लिए ये कलिमा अल्लाह ने इस्लाम ने मुकर्रर फरमाया, वो कलिमा ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ज़ाहिर है ये कलिमा हमको नबी के आने से पहले कहाँ मालूम था? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हमको इसकी दावत दी, तो ज़ाहिर है पहले नबी आएंगे बाद में कलिमा आएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। कश्मीर से भाई ने सवाल किया था कि जैसे अगर बाथरूम में, टॉयलेट वगैरह में कमोड वगैरह लगा या वो टॉयलेट है तो वहाँ पे क्या वज़ू बनाया जा सकता है अगर अलग से वज़ू खाना नहीं है? तहारत खाने में आम तौर पर आजकल गुंजाइश रखी गई है गुस्ल की भी और वज़ू की भी। पहले ज़माने में हमाम खाना अलग होता था और तहारत खाना अलग बनता था और वज़ू के लिए अलग जगह मुहैया की जाती थी, लेकिन आजकल चूँकि मकानात तंग हैं, छोटे हैं, इसलिए छोटी जगह में सारी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया करने की कोशिश की जाती है। इसी गर्ज से तहारत खाना और हमाम खाना एक ही जगह बना दिया जाता है। ऐसी सूरत में इस बात का लिहाज ज़रूर रखा जाना चाहिए कि जहाँ आप गुस्ल कर रहे हों और जहाँ वज़ू कर रहे हों वहाँ नीचे के हिस्से में कोई नजासत और आलूदगी न हो। अगर नीचे का हिस्सा पाक हो तब तो आपको वहाँ वज़ू कर लेना भी दुरुस्त है, गुस्ल कर लेना भी दुरुस्त है। अलबत्ता बाहर आप वज़ू करेंगे तो जो वज़ू की अज़कार है वो आप विर्द कर सकेंगे, तहारत खाने में वज़ू करेंगे तो सिर्फ वज़ू कर सकेंगे और वो औराद और अज़कार जो वज़ू के लिए हमको पढ़ने की हैं वो नहीं पढ़े जा सकेंगे। ये बात बहरहाल मलूज़ ख़ातिर रहे, इसलिए अफजल और बेहतर तो यही है कि बाहर के हिस्से में आकर वज़ू करें, लेकिन कोई उज़्र मजबूरी हो तो तहारत खाने में भी वज़ू करने की गुंजाइश है। जी
بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور ایم پی سے سید عبدالکریم صاحب نے سوال کیا تھا کیا سیدوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ کوئی بہت ہی غریب سید ہے تو کیا زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ سادات کرام کو زکوٰۃ دینے کے سلسلے میں پہلا قول تو یہ ہے کہ ان کو زکوٰۃ نہ دی جائے، لیکن بہرحال ایسے ممالک جہاں پر اسلامی احکام کا نفاذ ہے وہاں یہ ساری رعایتیں ملحوظ رکھی جا سکتی ہیں، وہاں تو اس کا اہتمام بہت زیادہ کرنا چاہیے. اب رہا ایسے ممالک جہاں اسلامی احکام نافذ نہ ہوں، جمہوری ممالک ہوں، وہاں پر ان کی مدد کی کوئی صورت نہ ہو. جو سادات کرام ہیں انتہائی غریب ہیں، قسمہ پرسی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے ان کی مدد کا، اور کوئی بھی صاحب حیثیت فرد ان کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، تو ایک اضطراری صورت ہے. ایسی صورت میں دو باتوں کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سادات کرام کے خاندان والوں کی زکوٰۃ سادات کرام کو دی جا سکتی ہے جو غریب ہیں، مفلوق الحال ہیں. فقہاء نے اسی گنجائش فراہم کی ہے. آخری اور انتہائی صورت یہ ہے کہ کوئی راستہ ہی نہ ہو اور وہ زکوٰۃ سادات کرام کے گھرانے کی بھی نہ ہو، عام گھرانے والوں پر زکوٰۃ واجب ہو گئی ہو، اور کوئی سید صاحب ایسے ہیں جو غریب ہیں اور تنگ دست ہیں، ان کی مدد ضروری ہے اور کوئی دوسرا راستہ مدد کا نہیں ہے، تو اس رقم میں زکوٰۃ سے بھی ان کی مدد کی جا سکتی ہے. لیکن یہ سب گنجائش کی صورتیں ہیں. افضل اور اولیٰ اور بہتر بات تو یہی ہے کہ ہم کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کسی اور دوسری رقم سے ان کی مدد کریں، کیونکہ 97% جو ہے زکوٰۃ ہم جو دیتے ہیں وہ 2.5% دیتے ہیں جو ہمارے پاس دولت ہے. بڑی بات اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت دے رکھا ہے، اتنا دیا ہے کہ اس میں سے ہم صرف 2.5% اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اور 2.5% اللہ کے راستے میں دینے کے بعد 97.5% دولت آپ کے پاس موجود ہوتی ہے. تو ہم زکوٰۃ دے کر ہی سمجھ لیں کہ ہم نے فریضہ ادا کر دیا ہے، یہ درست بات نہیں ہے. ہم کو چاہیے کہ اپنے اس الگ مال سے بھی جو 97.5% ہمارے دسترس میں ہے اس میں بھی خیرات کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور خاص طور پر سادات کرام کے لیے اس میں سے حصہ مختص کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور چنئی سے ایک محترم نے سوال کیا تھا کہ جیسے ان کا جو مکان ہے وہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ مدرسہ ہے، تو اوپر کیا فرسٹ فلور پہ رہ سکتے ہیں؟ کسی نے اپنے مکان کے نچلے حصے کو مدرسے کے لیے مختص کر دیا ہے، وہاں اسکول چلایا جاتا ہے، مدرسہ چلایا جاتا ہے، یا دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے اور سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، تب بھی اس کی شرعاً اجازت ہے. آپ ایسے مکان کے اوپری حصے میں قیام کر سکتے ہیں، بود و باش اختیار کر سکتے ہیں، بلکہ ایسا عمل کرنے والے بہت زیادہ اجر و ثواب کے مستحق ہیں، اس لیے کہ اسلام نے اشاعت علم پر بہت زور دیا ہے، اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے علم کی اہمیت جتانے کے لیے سب سے پہلی وحی میں علم اور قلم کا ذکر فرمایا ہے. اگر آپ اپنے گھر کے ایک حصے کو جو نچلی منزل ہے آپ اس کو اگر علم کی اشاعت کے لیے مختص کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مستحسن عمل ہے اور لائق تقلید عمل ہے. انشاءاللہ آپ کو ضرور اس کا اجر و ثواب ملے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور مئو سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اگر جیسے مسجد میں گئے اور رکوع میں شرکت کر پائے، نماز نکل رہی تھی، رکوع میں شرکت کر پائے، تو کیا ایسی صورت میں کیا ان کو رکعت مانی جائے گی؟ ان کو جو نماز ملی اس میں رکعت مانی جائے گی؟ الحمدللہ آپ نے اگر امام صاحب کے ساتھ رکوع میں شرکت کر لی ہے اور اتنی شرکت بھی آپ کی ہو گئی ہے کہ آپ نے تکبیر تحریمہ کہا ہے، ایک رکن کی مقدار قیام کیا ہے، جیسے سبحان اللہ کہنے تک آپ نے قیام کر لیا ہے اور رکوع میں آپ چلے گئے ہیں، تو امام صاحب کے ساتھ آپ کو سبحان ربی العظیم ایک مرتبہ کہنے کی مقدار تک آپ کو موقع مل گیا ہے رکوع میں ان کے ساتھ مصاحبت کا ساتھ رہنے کا، تب تو الحمدللہ وہ آپ کا رکوع جو ملا ہے گویا وہ آپ کو پوری رکعت مل گئی ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور بدایوں سے ایک بھائی نے سوال کیا تھا، حالانکہ گھر والے ان کا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کی اہلیہ بھی یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے، ان کی بیوی بھی نماز نہیں پڑھتی جبکہ پروگرام دیکھ رہی ہیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. نماز اسلام کا اہم ترین فریضہ ہے. بعض فقہاء نے سخت سزا ان کے بارے میں فرمائی ہے، لیکن بہرحال یہ ہے کہ فرض نماز کا چھوڑ دینا سخت گناہ ہے. اور پھر قرآن پاک میں جا بجا نماز کی تلقین آئی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جن لوگوں کو اللہ نے
किसी जगह तमकीन बख्शी है, हुकूमत दी है या घर की सरबराही अल्लाह ने अता की है, तो उस घर में उनको चाहिए कि नमाज के क़ियाम को तरजीह दें, उसके लिए कोशिश करें, जिद्दोजहद करें। आपकी अहलिया मोहतरमा अगर नमाज नहीं पढ़ती तो बड़े अफसोस की बात है, हमारा प्रोग्राम सुन रही हों तो ज़रूर आज ही से वो पाबंदी से नमाज़ पढ़ने का अहतमाम करें। घर के सारे अफराद को भी चाहिए कि पाबंदी के साथ नमाज पंजगाना अदा करें, और आपको चाहिए कि इनको बहुत मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ समझाएं, और समझ ना पाएँ तो किसी महल्ले के किसी आलिम दीन से रुजू करके उनको समझाएं, फहमाइश करवाएं, और फिर सजदे में सर रख कर इनके लिए दुआ भी करें। और कुरान पाक में दुआ सिखाई गई है, रब्बी जअलनी मुक़ीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ए मेरे रब, मुझे नमाज का कायम करने वाला बना दीजिए, मेरी ज़ुर्रियत को भी नमाज का अदा करने वाला बनाइए, और हम मेरी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। तो ज़ाहिर है आप इस दुआ का भी कसरत से एहतमाम कीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और अहमदाबाद से सवाल आया था, उसके अलावा भी एक दो और सवाल है दुआओं से मुतालिक। उन्होंने कहा मेरी तबीयत सही नहीं रहती तो मुफ्ती साहब से दुआ करवा दें, तो मैं चाहूँगा कि आखिर में मुख्तसर दुआ कर दें उनके लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़हिबिल बाअस रब्बन नास वश्फि अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउका शिफा ला युगादिरु सक़मा। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल करीम अन यशफियना। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल करीम अन यशफियना। अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल करीम अन यशफियना। परवरदिगार आलम, हम सबको जिस्मानी अमराज से शिफा अता फरमाइए, रूहानी अमराज से शिफा अता फरमाइए। जितने हमारे भला भाई बहन सब बीमार हैं मौला, खा वो हमारे मुस्लिम भाई हों गैर मुस्लिम भाई हों, जो भी इंसान मौला इंसानी रिश्ते से मौला हम उनके लिए दुआ करते हैं। अगर वो बीमार हों तो परवरदिगार उनको सेहत कामिला, शिफा आजला दाइमा मुस्तमिर अता फरमाइए, और परवरदिगार मोहल्लत अमल नसीब फरमाइए, ताकि आपकी मारिफत हासिल करके आपको राज़ी और खुश करने के काम अंजाम देकर हम आपके दरबार में पहुँच सकें। परवरदिगार सेहत कामिला और शिफा आजला के साथ ईमान पर इस्तिक़ामत के साथ दराज़ी उम्र की नेमत नसीब फरमाइए, और दराज़ी उम्र की नेमत का मौला आपकी मर्ज़ियात के मुताबिक इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाइए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन की शरई रहनुमाई फरमाई। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम शरीयत के आईने में। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए, और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। या